इट्स नर्व सप्लाई सुप्रास्कैपुलर नर्व। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। सुप्रास्पाइनेटस origin from supraspinous fossa, insertion on the greater tubercle of the humerus, nerve supply suprascapular nerve। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग हियर, एंड व्हेन देयर इज द शॉर्टनिंग ऑफ दीज फाइबर्स, तो ये आर्म ऐसे करके रेज होगी, होगी नहीं होगी? तो इस तरह से जो ऐसे करके इस एंगल पे जो मूवमेंट होता है ऐसे करके, दैट इज नोन एज द एब्डक्शन। सबको पता है। So supraspinatus muscle initiates abduction from 0 to 15 degree, and 15 to 90 we all know it is carried down by the main abductor, that is the deltoid muscle. Overhead abduction, trapezius and serratus anterior abduction of shoulder joint is very very important. It can be asked in the viva, it can be asked in the theory, it can be asked in your orthopedics, it can be asked in your PG entrance। ये कहीं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई ऑर्थोपेडिशियन के बच्चे हो, पकड़ के जबरदस्ती अपने पापा से पूछना abduction of shoulder joint। ओके ओके, सो अब ये पॉइंट समझ में आ गया। ये स्लाइड सबकी समझ में आ गई? ओके, तो मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, इसको मैं गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी डाल दूंगी, तुम लोग जी भर के पढ़ते रहना। ओके, infraspinatus। Infraspinatus is originating from the infraspinous fossa. It is inserted on the middle impression, लिखा होता है greater tubercle of the humerus, nerve supply again by the suprascapular nerve। action याद कर लो, lateral rotation of the arm, और ये जो है बेसिकली supraspinatus को abduction में हेल्प भी करती है, तुम्हारी बीबीसी में लिखा होगा। ओके, आगे बढ़े। वो जो मैंने बहुत बेकार सी हैंडराइटिंग में तुम लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ नोट्स दिए थे, वो किसी ने पढ़े थे? अगर पढ़ लिए होंगे तो ये सब थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ओके, teres minor। अच्छा, अब देखो दैट इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, दिस इज इट्स लैटरल एस्पेक्ट। ये तो मीडियल एस्पेक्ट होता है। लैटरल एस्पेक्ट पे अपर 2/3 पे होती है teres minor एंड लोअर 1/3 पे होती है teres major। teres major का इंसर्शन होता है लेडी बिटवीन द टू मेजर्स वाला, teres minor का इंसर्शन होता है सिक्स्थ वाला, लोअर इंप्रेशन और inferior impression on the greater tubercle of the humerus। So this is the origin of teres major from upper 2/3 of the lateral border of scapula, posterior aspect, insertion greater tubercle of the humerus। nerve supply teres minor की ऑलरेडी मैंने बताई थी, एक्सिलरी नर्व, देखो बिल्कुल एक्सिला के पास है, धड़ाक से एक्सिलरी नर्व उसे सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व। अच्छा, एक्शंस उसके अभी देख लीजिए आप। लेटरली रोटेट्स द infraspinatus। infraspinatus और teres minor के एक एक्शंस होते हैं। बीडीसी में कुछ एक्स्ट्रा दिया हो तो वो एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, लेकिन जो मैं तो भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे खुद पढ़ लेते हैं। दिस इज फॉर दोज who can be, they could be of some help। So अब्दुल समद जैसे इंटेलिजेंट बच्चों को हम खुद ही पढ़ लेते हैं। ओके, अब्दुल समद इज हियर। ओके, teres minor पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा होगा तो गूगल क्लासरूम से पढ़ लेना। आगे बढ़े, shall I proceed? Please tell। ओके, subscapularis। subscapularis एक मिनट। सबस्कैपुलरिस का ओरिजिन यहाँ होता है सबस्कैपुलर फोसा पे, और उसका इंसर्शन होता है लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। देखो, this is the origin of subscapularis from the from the subscapular fossa, medial 2/3, and it is inserted on the lesser tubercle of the humerus, and it is supplied by the axillary nerve। और अब no subscapularis supplied by, is the name suggests, upper and lower subscapular nerves।
Subscapularis is supplied by upper and lower subscapular nerves. Okay, और subscapularis का जो action होता है that is the medial rotation of the shoulder joint. Subscapularis का वो origin insertion समझ में आ गया? Nerve supply. Please tell me. Origin of subscapularis is from the subscapular fossa, insertion on the lesser tubercle of the humerus, and nerve supply by upper and lower subscapular nerves. अब देखिए यहाँ पे ये सारी मसल्स हैं. कौन सी मसल्स हैं ये? These are the muscles of this thing, rotator cuff. सबसे ऊपर आई supraspinatus, then infraspinatus, teres minor, और ये anteriorly आ गई subscapularis. ओके, इसमें उन्होंने लिखा है सबस्कैपुलरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे तो अलाउज मूव फ्री, तो इसको होता है मीडियल रोटेशन. उसमें देखना तुम्हारी जो वो है बीडीसी, उसमें इसके एक्शंस में एडक्शन भी लिखा होगा. लिखा है नहीं लिखा? एडक्शन लिखा है ना, एडक्शन. अब वो इसलिए होगा, देखो ये ऐसे है, जब ये ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म थोड़ी इधर को जाएगी, इस एंगल पे, ये एंगल कम होगा और ये थोड़ा आगे को आके मीडियल रोटेशन होगा. सो सबस्कैपुलरिस कॉजेस मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन. एडक्शन अगर आपकी किताब में नहीं लिखा है तो हरगिज एक्स्ट्रा चीज मत याद करिए, अगर लिखा है तो याद कर लीजिए, बट इट्स मेन एक्शन इज मीडियल रोटेशन. ओके, सबस्कैपुलरिस इट कॉजेस द मीडियल रोटेशन. सुप्रास्पाइनेटस we all know थोड़ा सा ऊपर उठाएगी, so it initiates the abduction. एक्सटर्नल रोटेशन और लेटरल रोटेशन एक चीज होती है. These two are the lateral rotators and subscapularis is the medial rotators. ओके, बहुत सारे एक्शंस होंगे, हमें याद करना है. सुप्रास्पाइनेटस का एक एक्शन, इनिशिएशन ऑफ द एब्डक्शन. Infraspinatus and teres minor, these are the lateral rotators and they assist in abduction. Subscapularis में एक और लिखा होता है, it steadies the scapula. अगर नहीं लिखा तो मत याद करना, बट इट्स मेन एक्शन इज मीडियल रोटेटर. सबस्कैपुलरिस जो कि एंटीरियर लाई करती है और ये थोड़ा पोस्टीरियरली अटैच होती है, टेरेस माइनर एंड इंफ्रास्पाइनेटस. सो दीस टू आर द लैटरल रोटेटर्स एंड सबस्कैपुलरिस इज द मीडियल रोटेटर एंड सुप्रास्पाइनेटस इनिशिएट्स द एब्डक्शन. याद कर लो, सुप्रास्पाइनेटस इनिशिएट्स द एब्डक्शन, infraspinatus and teres minor are lateral rotators, subscapularis is the medial rotators. Got the point? सन्नाटा, किसी की कुछ समझ में नहीं आया. भाव्या गर्ग, अब यहां पे ये देख लो, यू आर रिवाइजिंग. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. अच्छा, अब जो हम तुम लोगों को रोटेटर कफ बोल रहे थे, देखो इस तरह से इनका इंसर्शन होता है. ये रोटेटर कफ है. दीज आर द फोर मसल्स. सबस्कैपुलरिस एंटीरियरली SIT सिट, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर. इस तरह से ये कफ की तरह एनक्लोज करती हैं. ये कफ इंफीरियरली एब्सेंट होता है. ओके, सो दिस इज सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफीरियर इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर. ओके, अब ये देखो, ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये यहाँ पे होगा. इट इज causing, it is supraspinatus, it is causing the initiation of the abduction and it is assisting the deltoid. Okay, ये समझ में आ गया? ये मत देखो, ये समझ में नहीं आएगा. ये वाला समझ में आ गया? Got this one? ये समझ में आ गया सबकी? ओके, नेक्स्ट टेरेस मेजर. अब टेरेस मेजर देख लो, मैंने बताया था लेडी बिटवीन द टू मेजर्स. This is intertubercular sulcus, this is medial lip, this is lateral lip. Just see it is inserting on the medial lip and it is originating from the lower 1/3 of the lateral surface of humerus posterior aspect. Teres major originating from the lower 1/3 of the lateral border of humerus and it is getting inserted on the medial lip of the intertubercular sulcus. Okay, its nerve supply देखो, ये सबस्कैपुलरिस होती है यहाँ पे, यहाँ ये वेंट्रल ये सबस्कैपुलरिस होती है, से अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है. लोअर सबस्कैपुलर नर्व आल्सो सप्लाइज द टेरेस मेजर और ये भी सबस्कैपुलरिस की तरह मीडियल रोटेटर है. और एडक्टर भी कुछ किताबों में लिखा है. एडक्टर एंड एक्सटेंशन मत देखना, एडक्टर एंड मीडियल रोटेटर, ये दो याद रखना. ठीक है, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस बस यहां से पढ़ो, यहां से लेके यहां तक का पढ़ो. ये तुम्हें बाद में पढ़ाएंगे, यहां से लेके यहां तक पढ़ो. रीड कर लिया?
हैव यू रेड इट? प्लीज, कोई है नहीं यहाँ पे? प्लीज टेल मी। ओरिजिन ऑफ टेरेस मेजर इज फ्रॉम द, ये कुछ मत याद करो, ये इंफीरियर एंगल वगैरह कुछ नहीं, लेटरल बॉर्डर याद करना, लेटरल बॉर्डर लोअर 1/3. Okay, this is the origin of teres major. Insertion on the medial lip of the intertubercular sulcus, nerve supply by the lower subscapular nerve, and actions are adduction and medial rotation. अब बैक में आप आ जाइए फिर से लेटिसिमस डॉर्साई. चलो, we have got half an hour. Okay. लेटिसिमस डॉर्साई सबने अपनी बुक में निकाल लिया? प्लीज जल्दी बताओ. हाँ, अब लेटिसिमस डॉर्साई के बारे में हम लोग अब तक कितना जानते हैं, इसके बारे में हमें कितना पता है. देखो, जब भी कुछ पढ़ते हैं पहले सोचते हैं कि ये वर्ड हमने कहाँ सुना है, फिर वो नॉलेज हम अपनी इकट्ठी कर लेते हैं, उसमें थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा देते हैं. तो एगाथा क्रिस्टी, हलीमा सादिया, आपने पढ़ी है एगाथा क्रिस्टी की बुक्स? नहीं पढ़ी. ओके, तो उसमें ये एक चीज होती है कि कोई भी चीज सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि पैनिक मत करो, आंखें बंद करके, इस वक्त आंखें बंद मत करना, आंखें स्क्रीन पे रखना. हम लोग सोच के जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करते हैं, फिर उसमें नया एडिशन कर देते हैं, तो काफी तो सॉल्व हो जाता है. तो एक हम बहुत सुनते आ रहे थे, नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई थोरैकोडोर्सल नर्व. तो हमको उसकी, वी नो इट्स नर्व सप्लाई. इट्स नर्व सप्लाई इज फ्रॉम, कहां से होती है? thoracodorsal nerve or nerve to latissimus dorsi, which is a branch of posterior quadrant brachial plexus ultra, upper subscapular, lower subscapular, thoracic dorsal, radial and axillary. Okay, so we all know the nerve supply of latissimus dorsi, that is the thoracodorsal nerve. ये एक फैक्ट इसके बारे में हमें पता है. टेल मी, पता है या नहीं पता है? हाँ, अब इतनी देर से मैं गाए जा रही हूँ लेडी बिटवीन द टू मेजर्स. So we know its insertion also on the floor of the intertubercular sulcus. Okay. We all know its insertion also from, यहाँ पे insertion उन्होंने जरा ज्यादा ही broad कर दिया, anterior upper humerus. Its insertion is on the floor of the intertubercular sulcus. Okay. Its insertion is on the floor of the intertubercular sulcus. सही? इतना सबकी समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, कल आप लोगों को क्लास में ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया था? डॉक्टर सौम्या ने पढ़ाया था जहां तक मुझे याद है. ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन याद है सबको? तो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में लेटिसिमस डॉर्साई मसल आई थी, नहीं आई थी? यही था ना ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन. इट इज बाउंडेड inferiorly by the latissimus dorsi, medially by the serratus anterior and laterally by the medial border of the scapula. याद आ गया? So latissimus dorsi का कुछ ना कुछ तो हम लोगों को पता है. Now let us discuss its origin. ये इस तरह से होती है. ओके, अब जो बीडीसी में लिखा है और जिन बच्चों के पास ग्रेज वगैरह होगी वहां ओरिजिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा. यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? लेटिसिमस डॉर्साई का ओरिजिन पहले जो आपकी बुक में लिखा है मैं वो बोले दे रही हूँ. मेरे पास बुक नहीं है तो हो सकता है एक आध शब्द इधर उधर हो जाए, तो उसको पकड़ना मत. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर 4 रिब्स, नीचे की स्पाइन से होती है T7 to T12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. लोअर 6 thoracic स्पाइन्स होती है T7 to T12. ओके, लोअर 4 रिब्स से होता है इसका ओरिजिन. और ये इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट से होता है. इलियक क्रेस्ट का बीडीसी में बड़ा माइनर दिया है कि लेटरल के वो वेंट्रल 1/3 में और डॉर्सल 1/3 से, वो सब मत याद करो, इस वक्त सिर्फ इलियक क्रेस्ट याद कर दो. उसके अलावा लंबर फेशिया या थोरैको लंबर फेशिया दिया होगा. इतना दिया है नहीं दिया है बीडीसी में, बताओ? तो वैसे बहुत ज्यादा दिया है. यू जस्ट रिमेंबर T7 to T12 spines of thoracic vertebra.
T7 to T12 लिखा है या नहीं लिखा है? प्लीज टेल मी. ओके, लंबर फेशिया या थोरैको लंबर फेशिया जो भी लिखा हो, उसके अलावा इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, इलियक क्रेस्ट, इतना याद कर लो. बाकी का तुम उसके साथ पढ़ लोगे एब्डो वगैरह के साथ. ओके, इतना याद कर लो. अच्छा, अब किन्हीं बुक्स में लिखा होता है, हमें फोन मत करना, कि लंबर स्पाइन से भी होता है. तो बेसिकली एक चीज होती है फेशी, तो जो फेशिया होती है ना, उस फेशिया से जो इसका ओरिजिन होता है, तो कुछ किताबों में लिखा है कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम T7 to L5 स्पाइंस. जो थोरैको लंबर फेशिया है उसके साथ साथ ये स्पाइन से भी निकलती है. तो किसी में इसको L5 स्पाइन से भी इसका ओरिजिन किन्हीं बुक्स में दिया होगा, तो उस पर पैनिक मत होना. बस ये याद रख लो, T7 से लेके L5 का थोड़ा बहुत सैक्रम तक, ये पूरा नीचे इस स्पाइन, ये वर्टिब्रल कॉलम से होता है इसका ओरिजिन, इलियक क्रेस्ट से होता है इसका ओरिजिन, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से होता है इसका ओरिजिन, थोरैको लंबर फेशिया से होता है इसका ओरिजिन. समझ में आ गई इतनी बात? हाँ, अगर समझ में आ गई है, रटना मत. रटोगे इतने ओरिजिन इंसर्शन कभी याद नहीं कर पाओगे. ओके, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ तो बहुत ही कम लिखा है. इंसर्शन हमें पता है इसका कहाँ होता है, लेडी बिटवीन द टू मेजर्स. यहाँ पढ़ लो. It has a broad origin or arising from spinous processes of T6 to T12. इसमें वही लिखा है तुम्हारा BDC वाला, thoracolumbar fascia, iliac crest, inferior four ribs and inferior angle of scapula. कई बुक्स में हमने देखा था कि वो लंबर रीजन भी लिखते हैं. नहीं, इसमें भी नहीं लिखा है लंबर रीजन. ओके, इंसर्शन वी सी हियर. ये हो गया ओरिजिन इंसर्शन. इसकी नर्व सप्लाई होती है थोरैकोडोर्सल नर्व. कौन सी होती है इसकी नर्व सप्लाई? थोरैकोडोर्सल नर्व. नाउ लेट अस सी इट्स एक्शन. देखो, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल, यानी कि इस एरिया की शॉर्टनिंग हो रही है. जब इस एरिया की शॉर्टनिंग हो रही है तो ये आर्म जो है शोल्डर ज्वाइंट पीछे की तरफ आएगा. सो इट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट. इट कॉजेज द, ये हम कहाँ गायब हो गए? हम नजर आ रहे हैं तुम्हें? नहीं नजर आ रहे? नहीं नजर आ रहे. हाँ, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया. इट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट. इट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट. देखो यहाँ पे, हाँ, इट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट. अच्छा, अब ये इधर ऐसे करके ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इट विल कॉज द एडक्शन. ये एरिया कम होगा ना, ये एंगल कम होगा, तो इट कॉजेज द एडक्शन, adduction and medial rotation. Adduction and medial rotation. Extension, adduction and medial rotation. These are its actions. So latissimus dorsi हम एक बार रिवाइज करते हैं. Latissimus dorsi is a muscle of back. It originates from lower T7 to T12 or lower 6 thoracic spines, thoracolumbar fascia, iliac crest, lower 4 ribs and inferior angle of scapula. जितना याद हो उतना लिख देना, नहीं याद हो कोई बात नहीं. It gets inserted on the floor of the intertubercular sulcus, जिसको bicipital groove भी कहते हैं, और on the floor of the bicipital groove. Its nerve supply is thoracodorsal nerve. Its actions are extension ऑफ आर्म और शोल्डर ज्वाइंट. एक चीज है, ये मत कहना अरे मैम आपने तो आर्म बोला था, उसमें तो शोल्डर ज्वाइंट लिखा है. अरे उसमें तो आर्म लिखा है, आपने तो शोल्डर ज्वाइंट बोला था. एक चीज होती है एक्सटेंशन, medial rotation and adduction of shoulder joint. Medial rotation and internal rotation are same thing. ये पढ़ लो. पढ़ रहे हो? स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं गूगल क्लासरूम पे सब दे दूंगी. ओके, एक ये इसका डायग्राम है, ये आ गया. Okay. And nerve supplies by thoracodorsal nerve, which is a branch of posterior cord of the brachial plexus. Other branches of the posterior cord of brachial plexus are upper subscapular, lower subscapular, which supplies teres major, and lower subscapular supplies teres major, and upper lower subscapular supplies the subscapularis muscle. So upper subscapular, lower subscapular, ultra, thoracodorsal, radial and axillary. Axillary भी हमने पढ़ लिया. It supplies two muscles, deltoid and axillary. Okay. ये हमने पुराना रिवाइज कर लिया, जो तुम लोगों की आधा समझ में आया. और ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन भी रिवाइज कर लो. देखो हमने डायग्राम बना के दे दिया. ओके, अब देखो ये थोड़ी मसल्स है. ये कौन सी मसल है? ट्रेपीजियस. दिस इज डेल्टॉइड. ये देखो ऐसे करके लेटिसिमस डोर्साई है. राइट,
Perfect. Hello, yes. Any problem? Now we will discuss serratus anterior muscle. देखो फिजियो वालों ने हमारे 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए, तब भी हम तुम लोगों को छोड़ेंगे